नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अशोक भट्टाचार्य ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, तृणमूल सरकार पर लगाया आर्थिक वंचना एवं असहयोग का आरोप। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा शहर के विकास के लिए किए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। CPM पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन में संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें काम करते समय हमेशा राज्य सरकार से बाधाओं का सामना करना पड़ा। भट्टाचार्य ने वाम मोर्चा की सरकार में सिलीगुड़ी में हुए विकास कार्यों एवं TMC के शासनकाल में सिलीगुड़ी के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखते हुए तृणमूल के शासनकाल के दौरान काम करने में उन्हें जन बाधाओं का सामना करना पड़ा, सभी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा प्रत्येक मामले में उन्हें आर्थिक संकट और राज्य सरकार की वंचना सहनी पड़ी। अशोक भट्टाचार्य ने कहा हर क्षण उन्होंने बाधाओं से संघर्ष किया। अपने शासनकाल में उन्होंने शहर में बहुत काम किया है, पूरे राज्य सरकार ने विकास का काम नहीं किया है। उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर और वाम विधायक के रूप में अपने दाम पर सिलीगुड़ी का विकास किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शहर में नए फ्लाईओवर या महानंदा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने TMC पर अपरिकल्पित योजनाएं लागू कर शहर के विकास की गति धीमा करने का आरोप लगाया। पत्रकार सम्मेलन में CPM के दार्जिलिंग जिला सचिव मंडली के सदस्य जीवेश सरकार, कांग्रेस नेता जीवन मजुमदार समेत अन्य नेता मौजूद रहे थे। শিলিগুড়ির যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৃদ্ধি করা, শিলিগুড়ির শান্তি সম্প্রীতিকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব মানুষ আমাদের উপরে দিয়েছিল গত 5 বছরে, কর্পোরেশনের দায়িত্ব আবার বিধায়ক হিসাবে যে দায়িত্ব দিয়েছিল, বাধার মধ্যেও যে আমরা কাজগুলো করতে পেরেছি। এর আগে যখন বামপন্থ সরকার যখন ছিল তখনও যে শিলিগুড়ি যে উন্নয়নের কাজগুলো করেছি সেগুলোই এখানে আমরা তুলে ধরেছি। কিন্তু এটা করতে গিয়ে কতগুলো আগামীতে আমরা অন্য যে বিষয়গুলো আছে, রাজনৈতিক বিষয়, উন্নয়নের বিষয়, এগুলো তো আমাদের আলাদা আমাদের ইস্তার দেওয়া হয়েছে। এটার মধ্যে শুধু আগামী দিনে আরও আমরা কোন কোন বিষয়গুলি, জনজীবনের যে সমস্যাগুলি আছে, যেমন পানীয় জল, ট্রাফিক একটা বড় সমস্যা, খেলাধুলার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক আমরা বলেছি, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের কথাটা আমরা বলেছি। এবং এটা বলতে গিয়ে আমরা বিধান মার্কেটকে, হকার্স কর্নার এবং নিবেদিতা মার্কেট, 3টে বাজার সরকারের হাতে আছে জমিটা, এইগুলোকে পুনর্নির্মাণ করলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। শিলিগুড়িতে ব্যবসার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি হয়। এইগুলি কথাটা আমরা বলেছি। মহানন্দা নদী সংস্কারের কথাটা আমরা বলেছি। কতগুলো জায়গায় ট্রাফিকের সমস্যার সমাধানের জন্য উড়াল পুলকে আমরা বলেছি। লাস্ট 10 ইয়ার্সে প্র্যাকটিক্যালি সরকারের যে বিশেষ করে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্ট অনুযায়ী প্ল্যান ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছে, তাদেরই দায়িত্ব। কিন্তু তারা এসব নিয়ে কোনো পার্সপেক্টিভ প্ল্যান, কোনো মাস্টার প্ল্যান, কোনো সেক্টরাল প্ল্যান, কোনো প্ল্যানিং তৈরি না করে এরা কতগুলো প্যারালাল কাজ করার চেষ্টা করেছে ছোটোখাটো, কতগুলো আনপ্ল্যান। আমি একটা ছোটো উদাহরণ দিচ্ছি, কতগুলো 6 কোটি টাকা দিয়ে গেট বানিয়ে দিয়েছে। এই গেটের জন্য এই টাকাটা খরচা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। নির্বাচনগুলোকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। জবরদখলের রাজনীতি অনেক জায়গাতেই প্রতিরোধ করা যায়নি। তখন আমরা শিলিগুড়িতে মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম, রাজনৈতিক মতপার্থক্য যাই হোক, মানুষের অধিকার, নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার যে অধিকার, সেই অধিকারকে দুর্বল হতে দেবেন না। নিজের ভোট নিজে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন,
যাকে পছন্দ তাকে ভোট দিন, কিন্তু ভোট লুট করতে এলে পরে সমস্ত ধরনের পতাকা যারা গণতন্ত্রের পক্ষে তারা একজোট হয়ে ভোট লুটকে আটকান। তাই আমরা দেখেছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে বা বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি শিলিগুড়িতে এসে বারবার বলেছেন শিলিগুড়ি আমার চাই, কিন্তু শিলিগুড়ির মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে। এমনকি পৌরসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকেও তারা সামান্যতম শক্তি এখানে বৃদ্ধি করতে দেয়নি। আমরা দেখেছি শিলিগুড়ির এই যে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের पक्ष दाঁড়ানো। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के तृणमूल उम्मीदवार ने प्रचार में झोंकी ताकत। संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार शंकर मालाकार पर लगाया विकास नहीं करने का आरोप। जैसे जैसे मतदान नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के प्रचार का पारा भी बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, भाजपा सभी चुनाव प्रचार की होड़ में आगे निकलना चाहती है। कुछ जुलूस निकाल रहे हैं तो कोई बैठकें कर रही है, तो कोई डिजिटल रथ के जरिए लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार सुबह से विभिन्न राजनीतिक दलों ने सिलीगुड़ी, माटीगढ़ा, नक्सलबाड़ी, डाबग्राम, फुलबाड़ी और दार्जिलिंग जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर मालाकार फिर से इस सीट से खड़े हैं। टीएमसी ने कैप्टन नलिनी रंजन रॉय को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि शंकर मालाकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। शुक्रवार को उन्होंने माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उनके साथ टीएमसी के दार्जिलिंग जिलाध्यक्ष रंजन सरकार भी मौजूद रहे थे। देखें हमारे लड़ाईटा हलो বিচ্ছিন্নবাদীদের বিরুদ্ধে, কারণ আমরা এই যে আমাদের সমাজকে, আমাদের দেশকে, আমাদের যত সম্প্রদায় এখানে আছেন তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের মধ্যে মানে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার যে লড়াই, সেটাই আমাদের লড়াই, ওরাই আমাদের বিপক্ষে। এটাই আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। আমি তো এটাই বলবো, খুবই আশাবাদী। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস মাটি মানুষের দল, আমাদের দলনেত্রী প্রিয় মমতা দিদি মানুষকে ভালোবাসেন, মানুষের সমর্থন আছে। সেই ক্ষেত্রে আর যে এই যে প্রচারে ঘরে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়, এত সাড়া পাচ্ছি সুন্দরভাবে, এতে আমি একবারে পুরোভাবে আশাবাদী জিতবো। আর আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে। আপনি তো প্রচারে নেমেছেন, কিরকম সাড়া পাচ্ছেন, এই যে মানুষের সাথে কথা বলছেন? भारत भूटान सीमा पर जयगांव से 8,96,000 रुपए बरामद। नाका चेकिंग के दौरान अलीपुरद्वार जिले के जयगांव के जीएसटी मोड़ इलाके से पुलिस ने 8,96,000 रुपए बरामद किया। जयगांव थाने की पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को भारत भूटान सीमा पर बसे जयगांव जीएसटी मोड़ से नाका चेकिंग के दौरान 8,96,000 रुपए बरामद किया गया। पुलिस ने बताया विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में चुनाव आचार संहिता लागू है। पुलिस जगह जगह नाका चेकिंग चला रही है। आज नाका चेकिंग के दौरान जयगांव से काफी मात्रा में भारतीय करेंसी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि नाका चेकिंग के दौरान एक छोटे वाहन की तलाशी के दौरान 8,96,000 रुपए बरामद किया गया। गाड़ी के मालिक इन रुपयों के वैध कागजात दिखा नहीं पाए। इसके बाद ये पैसे जब्त कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि जब्त पैसे को अलीपुरद्वार के कोषागार में जमा कर दिया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में चुनाव आचार संहिता लागू है। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक की रकम कोई व्यक्ति अपने साथ वहन नहीं कर। भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने किया चुनाव प्रचार। तृणमूल के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी शहर के निकट भावेश मोड़ इलाके में पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर शिखा चैटर्जी का स्वागत किया। शिखा चैटर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चुनावी मुद्दे पर एक बैठक भी की। बैठक के बाद शिखा चैटर्जी एवं भाजपा नेता प्रसन्नजीत पाल ने भाजपा के डिजिटल टैबलो का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद शिखा चैटर्जी अपने समर्थकों के साथ प्रचार करने निकल पड़ी। वे आज डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी बाईपास इलाके में चुनाव प्रचार की।
वे घर घर जाकर लोगों से मिली, उनकी समस्याएं सुनी एवं चुनाव जीतने के बाद उनके द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कभी तृणमूल कांग्रेस में रही शिखा चैटर्जी ने तृणमूल के कुशासन एवं भ्रष्टाचार गिनाते हुए लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार के लिए घर घर जा रहे गौतम देव टाबूराम फुलबड़े विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को भी वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। आज वे सिलीगुड़ी नगर निगम के 39 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वे घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी के साथ तृणमूल सरकार के विकास कार्यों का हवाला देकर राज्य में तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनाने का आह्वान किया जा रहा है। गौतम देव सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों एवं दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याएं व सुझाव सुन। আপনারা তো সারাক্ষণ ছিলেন আজকে, আপনারাই বলবেন। আপনি তো দেখলেন মানুষের ম্যাক্সিমাম লোকের সাথে যোগাযোগ আছে, চেনে, 100% লোক চেনে। আর আমার পার্সোনাল যোগাযোগ আছে ম্যাক্সিমাম। এই এলাকাতে যাতায়াত করি, ছোটোবেলায় এখান থেকেই বড় হয়েছে। ন্যাচারালি মানুষের সাথে একটা আর্থিক সম্পর্ক। আর আমি ইলেকশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, অন্য পলিটিক্যাল পার্টি কে কোন ধর্ম কী এসব দেখি না। সবাইকেই নিজের কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষ, নির্বাচক মণ্ডলী, তাদেরকে আমি সমান দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি, দেখি এবং একটা বৃহত্তর পরিবার বলে মনে করি ডাকগ্রাম পরিবারের মানুষ। আমি যখন কাউন্সিলর ছিলাম ওই ওয়ার্ডটা 30 বছর ধরে আমি, আমার স্ত্রী, আমার সবাই কাউন্সিলর ওখানে 30 বছর ধরে। কলেজ পড়া বুঝতেই পারছি, খুবই উচ্চশিক্ষিত মানুষের বা, কিন্তু মানুষকে ওই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার ফলে ওখানে একটা স্থায়িত্ব পেয়েছে। আমরা এইভাবেই কাজ করি। পাশের ওয়ার্ডে দুলাল আছে, এইভাবে কাজ করে, অন্য ওয়ার্ডে যারা আছে তারা কাজ করে। পুরো বিধানসভায় আমার প্রায় 90% এলাকা কভার হয়ে গেছে। 7 দিনের মধ্যে টোটাল কভার একবার হয়ে যাবে। মানুষের খুব ভালো সন্তুষ্ট সারা আছে। একদম মমতা ব্যানার্জি তার উন্নয়ন এবং মমতা ব্যানার্জিকে যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, আর বিজেপি তো ক্যান্ডিডেট একটা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে, পরের দিন চেঞ্জ করছে, ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে, ক্যান্ডিডেটরা বলছে আমি দাঁড়াবো না, ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে, ক্যান্ডিডেটের ভোটার লিস্টে নাম নেই দিল্লিতে। এইসব সমস্যা করছে বিজেপি। এত আনঅর্গানাইজড হয়ে গেছে শাসক দল দিল্লিতে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस ने नहीं किया विकास, भ्रष्टाचार में लिप्त TMC, ये बातें कही है माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार आनंद बर्मन ने। इस बीच शुरू हुआ चुनाव प्रचार, ठोका जीत का दावा। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार आनंदमयी बर्मन ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। आज सुबह वे दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और नारा लिखकर अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। चुनाव प्रचार के दौरान सिलीगुड़ी सांसद जिला भाजपा के नेता, कार्यकर्ता व समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी सीट के भाजपा उम्मीदवार आनंदमयी बर्मन लंबे समय से भाजपा के सिलीगुड़ी संगठन के विभिन्न पदों पर है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राज्य की TMC सरकार की विफलताओं पर प्रकाश डाला और लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए आनंदमयी बर्मन ने कहा कि वह एक स्थानीय उम्मीदवार है, इसीलिए उनकी जीत पक्की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राज्य में व्याप्त विभिन्न भ्रष्टाचार के कारण तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर नहीं जीत पाएगी। गौरतलब है कि फिलहाल माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी सीट पर कांग्रेस सत्ता में थी। इस बार भी यहां के वर्तमान विधायक व दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर मालाकार मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी आनंदमयी बर्मन ने कहा कि शंकर मालाकार बाहरी उम्मीदवार है, इस कारण स्थानीय लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शंकर मालाकार SJDM में भ्रष्टाचार के आरोपी है। दीदी के बोलो के तर्ज पर शुरू हुआ सौरव के बोलो अभियान। तृणमूल उम्मीदवार सौरव चक्रवर्ती ने जनता तक पहुंचने का निकाला नायाब तरीका। अलीपुरद्वार में तृणमूल उम्मीदवार सौरव चक्रवर्ती ने चुनाव प्रचार से पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए दीदी के बोलो अभियान के तर्ज पर सौरव के बोलो अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को सौरव चक्रवर्ती ने अलीपुरद्वार स्थित तृणमूल जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस बीच उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 7365965060 मोबाइल नंबर जारी किया गया। तृणमूल उम्मीदवार सौरव चक्रवर्ती ने कहा कि अलीपुरद्वार के लोग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा सकते हैं। वे इन समस्याओं का स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कल से ही
यह परिसेवा शुरू हो जाएगी। এখানে ছাত্র আন্দোলন যুব আন্দোলন করেছি। বিগত 5 বছর আমি আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে কাজ করছি। মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আরও নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আমি একটি নতুন আজকে ঘোষণা করছি। আজকের থেকে আমি একটি পাইলট প্রজেক্ট আমার বিধানসভা কেন্দ্রে চালু করতে যাচ্ছি। আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান ইলেকশন কমিটির জগমঞ্জুর উপস্থিত আছেন, ইলেকশন এজেন্ট পরিমল দে আছেন, এখানে আমাদের টাউন ব্লকের সভাপতি আছেন, দুলাল ঘোষ আছেন, আরও আমাদের অন্যান্য নেতৃবর্গ আছেন। তাদের উপস্থিতিতে সবাইকে আমি আজকে জানাচ্ছি যে সৌরভকে বলো, মানে গুটিশকে বলো, সৌরভ ব্র্যাকেটে গুটিশ। সৌরভ আমার ভালো নাম, গুটিশ আমাকে আলিপুরদুয়ারের মানুষ গুটিশ বলে ডাকেন। তো আমি একটা নাম্বার আপনাদেরকে শেয়ার করছি সবাইকে, সেই নাম্বারটাও। এই নাম্বারে সকাল 9টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই নাম্বারে ফোন করলে পরে কেউ না কেউ ফোন অ্যাটেন্ড করবেন, তার জন্য আমি লোক নিয়োগ করেছি এবং তারা সার্ভিস দিচ্ছেন। খুব একেবারে আমি বলবো না যে সম্পূর্ণ কর্পোরেট স্টাইল বা এরকম কিছু ব্যাপার, তবে আমরা চেষ্টা করব। আমাদের নাম্বার হচ্ছে 7365965060, 7365965060। এই নম্বরে সকাল 9টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত ডায়াল করলে যে কোনো লোকের যে কোনো সমস্যার কথা তারা জানাতে পারবেন। সমস্যা সমাধানে আমি চেষ্টা করব। আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ থাকবে, তার অর্থ এই নয় যে এই নাম্বারটা ফোন করলে আমাকে পাবে। এই নাম্বারটা হচ্ছে একটা আমাদের অনেকটা কল সেন্টার টাইপের যেভাবে হয়, সেখানে ইনপুট আসছে এবং আউটপুট যাচ্ছে। ওখানে অলরেডি আমাদের কয়েকজন এক্সপার্ট সঙ্গে সঙ্গে ওদের সাথে লিয়াজও থাকবে। কেউ হসপিটাল দেখবে, কেউ প্রশাসনিক বিষয়, কেউ কারো পার্সোনাল সমস্যা, কেউ মানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা ওখানে শুনবেন। শোনার পরে লিপিবদ্ধ হবে, রেজিস্টার্ড হওয়ার পরে ভেরিফিকেশন হবে। 3টে সেক্টর আমাদের রাখা হচ্ছে। একটা হচ্ছে সুপার ইমার্জেন্সি, মানে যার এখনই প্রয়োজনীয়তা। আরেকটি রাখা হচ্ছে ইমার্জেন্সি। এরকমভাবে আমাদের 3টি সেক্টর রাখা হচ্ছে। सड़क दुर्घटना में मुरलीगंज निवासी एक व्यक्ति की हुई मौत, पूरे इलाके में छाया हुआ है मातम। सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा ब्लॉक विधाननगर मुरलीगंज के मीरामार रिसोर्ट के नजदीक हुई दुर्घटना में आज मुरलीगंज निवासी 52 वर्षीय माझहर आलम नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस्लामपुर से सिलीगुड़ी की तरफ आ रही स्कॉर्पियो ने साइकिल से जा रहे माझहर आलम को पीछे से धक्का मार दिया। स्थानीय लोग तत्काल उनको लेकर विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर विधाननगर थाने ले आई। इस दुर्घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तेंदुए के हमले में महिला घायल, चाय बागान श्रमिकों ने वन विभाग कार्यालय का किया घेराव। नक्सलबाड़ी थाना अंतर्गत विजयनगर चाय बागान में तेंदुए के हमले में एक चाय श्रमिक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि घायल महिला निजी नर्सिंग होम में इलाजरत है। घायल महिला का नाम अनिता सुब्बा है। सीपीआईएम नक्सलबाड़ी एरिया कमेटी सदस्य राजू सरकार ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 4 बजे उक्त महिला चाय श्रमिक अन्य श्रमिकों के साथ विजयनगर चाय बागान में कार्यरत थी। तभी एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद उसे नक्सलबाड़ी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन घायल महिला को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। राजू सरकार ने बताया कि तेंदुए के हमले को देखते हुए चाय श्रमिकों ने आज काम बंद करते हुए टुकरिया झाड़ वन विभाग का घेराव कर उचित कदम उठाने की मांग की। टुकरिया झाड़ वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च अभियान व 2 पिंजरे लगाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान गौतम घोष, राजू सरकार, तूफान मलिक, आर मुखर्जी, चाय श्रमिक सहित अन्य लोग मौजूद थे। उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से भड़का पार्टी समर्थकों का गुस्सा। रायगंज कार्यालय में जमकर की तोड़फोड़, आग भी लगाई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल टीएमसी के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरी है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी
मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल शुरू हो गया है। बाहरी लोगों या स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है और बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर बंगाल भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन जलपाईगुड़ी के बाद अब उत्तर दिनाजपुर जिले में भी भाजपा समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उत्तर दिनाजपुर जिले में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से भाजपा समर्थक काफी नाराज है। उन्होंने रायगंज पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, टेबल और कुर्सियों में आग लगा दी, यहां तक कि बैनर फ्लेक्स को फाड़ दिया। केंद्रीय महिला व बाल कल्याण राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी का जो बैनर बनाया गया था उसको भी फाड़ दिया गया। सभी होर्डिंग्स को भी तोड़ दिया गया। व्यापक उत्तेजना रायगंज भाजपा कार्यालय में बनी हुई थी और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले भाजपा समर्थकों की मांग थी कि करंदीगी और इटाहर के स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। इन दोनों जगहों में उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि लोगों के हकों के लिए लड़ने वाले लड़ाकू नेता निमाई सिंह को टिकट देना होगा। इस विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यालय में काफी उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस संबंध में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने कहा कि भाजपा कर्मियों ने आवेग में आकर यह सब किया है। आवेश में भाजपा कर्मियों ने क्या तोड़फोड़ किया है, इस संबंध में भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे। उनकी मांगों को भी भाजपा के शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा जाएगा। आज ये पार्टी बेस तैরি করার পরে ওরা সব আসে চেয়ারে বসে সামনে সব টেবিল এনে দিচ্ছে, আমরা সব কিছু করে দিচ্ছি। আরও কি ওরা কি করছে, প্রার্থীও ইচ্ছা মতো দিচ্ছে। আমরা তো ধিক্কার জানাই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহকে, ধিক্কার জানাই দিলীপ ঘোষকে। বিজেপি পার্টি অবশ্যই এরকমই চলবে, ভাঙচুর করে দেবো আমরা। কিন্তু এখনো করণদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে কেন সব লিকার হয়ে গেছে, সব জানা হয়ে গেছে আমাদের। কে ক্যান্ডিডেট হচ্ছে, কে কি করছে। আজকে ওই দুটো লোক ছাড়া ক্যান্ডিডেট আর কেউ নেই ক্যান্ডিডেট যারা দুদিন ধরে আসলো অন্য পার্টিতে। আর আমরা এত বছর ধরে পার্টিটা করে বসে আছি। আরে এত বছর ধরে পার্টি করে পার্টির জন্য কত লড়াই করছি, পার্টির জন্য কত মার খেয়েছি, পার্টির জন্য কত কেস খেয়েছি, পার্টির জন্য কত বাড়ির থেকে পলায় চলে গেছে ফ্যামিলি রেখে। আর আজকে আমাদের এই পজিশন, এই পরিস্থিতি। ওই ক্যান্ডিডেট দুটো ক্যান্ডিডেট ছাড়া আমরা চাই না, আমরা জিতাবো। আমরা চাই নিখিল সাহেবের বদলা, আমরা চাই অমিত শাহের বদলা। নিদর্শন আছে, একটা আছে সেই তৃণমূল সরকারের আমলে, যেটাকে আমরা কি বলবো, যে বিধায়ক যেটা করেছেন সেটা হলো নতুন একটা চুল্লি। সেই চুল্লি এখন ইনকমপ্লিট। ওটাকে আপনি এটা ইনকমপ্লিট রাখলেন কেন? তাছাড়া ওই চুল্লিটা উদ্বোধন হয়নি, একদম ফ্রেশ আছে। প্রথম দফায় প্রথমে একটা ডেট বডি যায়, সেখানে মাননীয় এই যে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন খগেশচন্দ্র দাস, তাকে বিনা উদ্বোধনে ধূপকাঠি দিয়ে প্রণাম করে দিল। আজ থেকে এটা তৃণমূল कांग्रेस सरकार। मालदा में गोपाल शाह बने भाजपा उम्मीदवार। स्थानीय नेता के उम्मीदवार बनने से कार्यकर्ताओं में जोश। लोग इस बार एक नया बदलाव चाहते हैं, इसीलिए लोग भारी मतों से भाजपा को जिताएंगे, ये बातें कही है गोपाल शाह ने। भाजपा द्वारा मालदा विधानसभा सीट पर स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भाजपा ने गोपाल शाह को मालदा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वे पहले ओल्ड मालदा पंचायत समिति के अध्यक्ष और सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल वे इलाके में पार्टी के स्वच्छ व प्रखर व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। दूसरी ओर उनके उम्मीदवार बनने से तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन के लिए मुकाबला कठिन हो गया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन मान रहे थे कि भाजपा इस सीट से किसी बाहरी नेता को अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन भाजपा के इस फैसले ने टीएमसी और सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को कुछ हद तक असहज कर दिया है। हालांकि इस संबंध में तृणमूल और सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों ने कहा कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बता दें, गुरुवार दोपहर मालदा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में गोपाल शाह का नाम घोषित किया गया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि गोपाल शाह लंबे समय से भाजपा के विभिन्न आंदोलन में शामिल रहे हैं। उनका व्यक्तित्व अच्छा है और बेदाग है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बार भारी अंतर से चुनाव जीतने की उम्मीद जताई। इस बीच मालदा विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनने के बाद गोपाल शाह ने कहा, पार्टी ने मुझे वहां सम्मान दिया है जिसका मैं हकदार हूं। मैं टीम में एक सैनिक के रूप में काम करना जारी रखूंगा। लोग इस बार एक नया बदलाव चाहते हैं, इसलिए लोग भारी मतों से भाजपा को जिताएंगे। এবং মালদা বিধানসভা থেকে আমাকে দল মনোনীত করেছে, সেই জন্য আমি দলের কাছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
যে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে আমাকে মনোনীত করার জন্য। 2016 সালে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী এখানে ছিলাম। সত্যি খুব ভালো লাগছে, কারণ রাজ্যের যে পরিবর্তন আসন্ন সেটা সাধারণ মানুষ বলছে। তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এবার পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। মালদা বিধানসভা থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে এবং মানুষ চাইছে বিজেপি এখান থেকে জিতুক। আমি এখানে অনেক ভোটে জিতবো, মানুষ আমার সাথে আছে, সাধারণ মানুষ আমার সাথে আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত শ্রেণীর কার্যকর্তা বুথ থেকে আর আমাদের সমস্ত শ্রেণীর কার্যকর্তার সাথে আমার আছে, খুব ভালো লাগছে। দল আপনাকে কিসের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে প্রার্থী করবে, কি মনে করেন? আমরা বহুদিন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত আছি। দল যোগ্য মনে করেছে বলেই আমাকে মনোনীত করেছে, জিতবে মনে করি। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।